Safety in an MMA event is when somebody is knocked out, that the referee knows how to handle that situation first inside the cage. Second, the referee knows when to call the doctor. Third, the doctor knows when to treat that fighter in the medical room. Or fourth, the doctor knows when to put him in the ambulance and send him for a MRI or into the emergency section. Until these safety principles are enforced in MMA events in India, it is right now MMA in India is at a very high risk, very, very high risk. Watch this great knockout from so and so event, and everybody is watching. Oh, क्या knockout हो गया, bam, knockout, अरे great, great. वो वीडियो वायरल हो जाता है. अरे वो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन क्या आप ये देख रहा है कि वो इवेंट ऑर्गेनाइज कैसा किया जा रहा है? कि वो इवेंट में ना तो सेफ्टी है, ना तो डॉक्टर है, ना तो फाइटर्स ट्रेंड है, ना तो ऑफिशियल्स ट्रेंड है. So if you are supporting a knockout just because the knockout looks good, but you are not verifying the event, you are being irresponsible by promoting that video. First point, every MMA fight which ever happens, whether it is in India or USA or South Africa, every MMA fight has a high risk element. हर एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इवेंट और फाइट में एक हाई रिस्क एलिमेंट होता है. मतलब किसी का सीरियस इंजरी या डेथ होने का चांसेस है. एज पायनियर ऑफ एमएमए मैं ये कह रहा हूं, है, रिस्क है, हाई चांसेस है. दैट इज एमएमए. दिस इज नॉट पॉइंट कराटे वे आई डू लाइक दिस वे पॉइंट. नहीं, ये वैसा नहीं है. ये ऐसा है, बूम 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 सब चलता है. सो दिस इज नॉट टच टच, दिस इज अ रियल फाइट. सो देयर इज अ हाई रिस्क एलिमेंट, हाई चांस ऑफ डेथ. हाँ, हम ऐसा स्पोर्ट में इन्वॉल्व है, ये सच बात है. वी आर इन्वॉल्व इन दिस स्पोर्ट. सो हाउ डू वी ब्रिंग द रिस्क एलिमेंट डाउन? The first way I can bring the risk element down is by IMA supervision. The second way I can bring the risk element down is by IMA sanction. So what are the factors that IMA brings which reduces the risk element? It is not that the risk element gets eliminated. ऐसा नहीं है कि IMA supervision या IMA sanction है कि आप में कोई भी इंजरीज नहीं होगा आपके इवेंट में और कोई डेथ नहीं होगा. रिस्क फैक्टर या रिस्क एलिमेंट है वो अभी कम हो रहा है, हम उसको मिनिमम करा रहे हैं. What are the factors? Please make note. First, all the participants at the event, do they have any pre-existing conditions? That is an important factor. अरे आप लोग फाइटर को लड़ाते हैं, उसका ना तो कोई जांच किया है कि इसके पहले कभी नॉकआउट हुआ है, ये गाड़ी चलाते चलाते गिर गया और सिर जो है रोड पे लग गया और उसको कंकशन है, और आपको पता नहीं है कि वो एक ब्लड क्लॉट हो गया है एमएमए में नहीं, एक्सीडेंट पे, रोड एक्सीडेंट पे. इट्स कॉल्ड अ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन. और रोड एक्सीडेंट पे उसको एक ब्लड क्लॉट हो गया है, वो क्या बोलता है, अरे कुछ नहीं, ठंडा पानी डालो सिर पे, ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट वीक वो एमएमए खेलने आता है, अभी उसका ब्लड क्लॉट है, इसको हम कहते हैं प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन. वो फाइट करने आता है, एक हल्का सा पंच लग जाता है उसको, हल्का सा पंच, वो कोमा में चले जाता है. अभी हॉस्पिटल में लेके गया, मर गया, गॉड फॉरबिड, मर गया. मरने के बाद क्या हो जाता है, लोग क्या बोलेंगे, हाँ एमएमए में फाइट किया इसलिए मर गया. ये एमएमए बहुत डेंजरस गेम है. What was the reason? Pre-existing condition. आप लोग चेक कर रहे हैं, नहीं चेक कर रहे. We ensure that there is a double check of pre-existing conditions. The athletes have to bring a fitness certificate, which means that they have been tested by a doctor.
If they are bringing a certificate from the doctor which says that they are fine, and if something is proven later, then you can hold that doctor or that hospital or that team responsible because they have provided a false report to you. Pre-existing conditions we have to verify, और ये नहीं हो रहा है आज जो non-sanctioned events में. Second reason that can be the cause of death, poor or no training. हमारे पास हमारे WhatsApp में और हमारे आईमा इनबॉक्स में डेली 100 से ज्यादा मैसेजेस आता है. सर आई वांट टू फाइट UFC. ओके, आपका क्या रिकॉर्ड है? सर रिकॉर्डिंग भेजू? नहीं नहीं नहीं, आपका रिकॉर्ड क्या है? हाँ सर मैं रिकॉर्ड करके भेज सकता हूं. अरे भैया रिकॉर्ड मतलब तुम्हारा फाइट कितना हुआ है? फाइट वो तो नहीं किया है सर. अच्छा, कितना साल ट्रेनिंग किया है? सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं. आप ज्वाइन करना चाहते हैं और आप UFC में खेलना चाहते हैं. आपका विजन बहुत अच्छा है, आपका ड्रीम बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है. ठीक है सर, कितना टाइम लगेगा? 10 साल लगेगा बेटा, 10 साल. ओह ठीक है, हम दूसरा फेडरेशन में जाएंगे. जाओ भैया. पुअर और नो ट्रेनिंग. पीपल आर नॉट ट्रेन्ड, पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड, पीपल डोंट नो व्हाट इज MMA, और वो फाइट करा रहे. अरे दिखने को मिलता है, आप जब वीडियो देखोगे ना, आप देखने को मिलता है वो स्टांस उसको आता है नहीं, वो नाच रहा है, उसको स्टांस है नहीं आता है, और उसको स्टांस नहीं आता है तो उसको किक लग गया तो वो बेहोश हो गया. अरे ये बकवास है ये. हाउ आप लोग ऐसे फाइटर को क्यों लड़ा रहे हो जिसको मिक्स मार्शल आर्ट छोड़ो, मार्शल आर्ट्स ही नहीं आता है. Poor or no training is the second cause that could be for a death or a serious injury in mixed martial arts. Third cause, note karo yaar, please note karo. Third cause, if they are unaware of MMA rules. अरे वो फाइट कर रहा है लेकिन कौन है? वुशु प्लेयर है. वो फाइट कर रहा है, कौन है? वो रेसलर है. अच्छा सर, फाइट के टाइम पे फाइटर रेफरी को पूछ रहा है, सर पटको उसको, अलाउड है सर? वो ग्राउंड पे है, वो साइड कंट्रोल में है, साइड कंट्रोल में पूछ रहा, सर एल्बो मार सकते? अरे बेटा तुझे रूल्स पता नहीं? नहीं हमको नहीं पता. कोच ने बोला, कोच साहब ने बोला चलो फाइट करो, लड़ाओ भाई लड़ाओ. अरे मर जाएगा. मिक्स मार्शल आर्ट्स रूल्स पता नहीं है, कौन से रूल्स के हिसाब से खेल रहा है? ABC रूल्स या CBD रूल्स या XYZ रूल्स? गैमएफ रूल्स फॉलो कर रहा है, यूनिफाइड रूल्स, वन चैंपियनशिप रूल्स, प्राइड रूल्स, कौन से रूल्स फॉलो कर रहा है? पता नहीं है. Unaware of MMA rules is the third factor. Fourth factor that could be for a death or a serious injury of mixed martial arts in India, absence of mandatory medical equipment, medical team, green channel. क्या आपको पता है कि जब आईमा ऑफिशियल्स एक इवेंट को सैंक्शन करता है, सबसे पहले लास्ट इवेंट में हमारा यशपाल सर ने हमको बहुत हेडेक दिया, बहुत हेडेक दिया. क्यों? क्योंकि वो रूल्स फॉलो कर रहा था. जो कमिश्नर रूल्स फॉलो करता है वो प्रमोटर के लिए बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा हेडेक है. क्यों? क्योंकि वो बोलेगा ग्रीन चैनल नहीं है. सर ग्रीन चैनल क्या है? ग्रीन चैनल वो है जब डॉक्टर फाइटर को स्ट्रेचर पे लेगा, वो स्ट्रेचर से जब वो भाग के लेके, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर थोड़ी उतरेगा वहां केज पे, वो उसको स्ट्रेचर पे उठाएगा और वो रूम की तरफ भागेगा. वो केज से रूम तरफ रास्ता नहीं है जाने के लिए, सीढ़ी है, ऊपर नीचे वाला सीढ़ी है. तो हमारा कमिश्नर क्या बोलेगा? नहीं नहीं चलेगा, अप्रूव्ड नहीं है. तो हम बोलेंगे अरे यशपाल सर थोड़ा करो मैनेज. नहीं 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 नहीं, रूल्स को फॉलो करेंगे हम. ग्रीन चैनल जब तक नहीं है तब तक इवेंट सैंक्शन नहीं है. फिर हम लोग सब दिमाग लगाएगा और ग्रीन चैनल क्रिएट करेगा, बिकॉज द ग्रीन चैनल विल create a clear pathway for the medical team to take the fighter towards the medical room. Also, extension of the green channel is from the medical room to the ambulance. अगर बहुत पब्लिक रास्ता में है तो वो फाइटर का सेफ्टी के लिए रुकावट पैदा करेगा. So our
इवेंट कमिश्नर हैज टू क्रिएट ए ग्रीन चैनल. अरे डॉक्टर छोड़ो, हॉस्पिटल छोड़ो, हेल्पर्स छोड़ो, एम्बुलेंस छोड़ो, हॉस्पिटल पार्टनर छोड़ो, ये ग्रीन चैनल के बारे में हमको पता ही नहीं है. सर रेड चैनल चलेगा? नहीं, रेड चैनल मतलब अलाउड नहीं है. So if you do not have, if there is an absence of all these mandatory policies, there is a high risk in your event. Point number 5, poor matchmaking or one-sided matchmaking can also be the cause of death or serious injury. मैं इवेंट का ऑर्गेनाइजर हूं, ठीक है, और मनन सर उसका टीम को लेकर आया है. मेरा भी फाइटर है वो इवेंट में, और मनन सर का फाइटर भी उसके इवेंट में है. मैं मनन सर को ये पूछता हूं, सर आपका फाइटर का एक्सपीरियंस क्या है? सर उसका रिकॉर्ड 0-0 है, फर्स्ट टाइम वो एमएमए खेल रहा है. अरे बहुत बढ़िया. अभी मेरा फाइटर का 10-0 रिकॉर्ड है, 10-0 एमेच्योर एमएमए में. उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मैं जानता हूं एज अ प्रोमोटर, अगर मेरा फाइटर मनन सर का फाइटर के साथ खेलेगा तो उसको फर्स्ट 30 सेकंड्स में नॉकआउट करेगा. क्यों? क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है. लेकिन मनन सर वो नहीं जानता है. लेकिन क्योंकि मैं क्रिकेट प्रमोटर हूं, तो मैंने मैच मेकिंग वन साइडेड किया है. और क्या होता है, नॉकआउट हो रहा है 30 सेकंड में. अरे पूरा इंडिया तो ताली बजा रहा है वो वीडियो के लिए, वायरल वीडियो हो गया. अरे वो क्राइम हो गया, वो क्राइम. Poor matchmaking, one-sided matchmaking is a big cause of serious injuries in mixed martial arts and can be the cause of death. Point number 6, another reason that you could have serious injuries or death in mixed martial arts: untrained officials. ये जो बड़ा ग्रुप जो आइमा को छोड़ के चला गया ना कुछ साल पहले, और हम खुश है कि वो ग्रुप चला गया, सब क्रिकेट लोग, करप्ट लोग छोड़ के चला गया. उनमें से एक बंदा, हम उसको कितना ट्रेनिंग दिया ऑफिशियल होने के लिए, लेकिन जब वो रेफरी का काम करता था और ऊपर से कोई ग्राउंड एंड पाउंड मार रहा है, और ये जो ग्राउंड में है उसका सिर मैट को ऐसा लग रहा है, बाउंस हो रहा है ऐसा मैट पे, और ये मार रहा है ऊपर से, रेफरी देख ही रहा है उसको जैसे कि वो पिक्चर देख रहा है, ऐसा देख रहा है वो. और हम बाहर से चिल्ला रहे हैं, फाइट स्टॉप करो, फाइट स्टॉप करो, मर जाएगा. और बहुत बार हमारे रेफरीज अंदर घुस के स्टॉप करता था वो. फिर हमने बाद में वो रेफरी को बैन ही कर दिया, भाई तुम रेफरिंग मत करो, तुम्हारा बस की बात नहीं, तुम बाहर बैठ के तुम टाइम कीपिंग करो, अच्छी बात है तेरे लिए. बट दिस इज डेंजरस. सो मैं बहुत से फाइट्स देख रहा हूं आज जो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में जो चल रहा है, जहां पे रेफरी फाइट को स्टॉप नहीं कर रहा है. हमारे कहीं पे हमारे ऑफिशियल्स गए हैं कोई इवेंट में, वो बोल रहे हैं कि सर वो स्टॉप ही नहीं कर रहा है फाइट, हम लोग बाहर से चिल्ला रहा है स्टॉप करो, स्टॉप करो. आइमा के इवेंट्स में एक रेफरी नहीं होता है, 4 रेफरीज होता है, एक केज के अंदर और 3 रेफरीज बाहर से रहता है. और अगर सेंटर वाला रेफरी अगर सो रहा है ना, तो बाहर से विसल मारता है वो उसको उठाने के लिए कि फाइट स्टॉप करो. Untrained officials is another cause. Point number 7, another reason for serious injuries or deaths in MMA is negligence of post-fight care, post-fight tests and post-fight observation. 2 फाइटर का जब फाइट हुआ, और बहुत हार्ड फाइट हुआ, बहुत हार्ड फाइट हुआ, एल्बोज, नीज सब चला वो फाइट में, दिखने में तो बहुत बढ़िया था. लेकिन फाइट होने के बाद हमारा जो इवेंट कमिश्नर यशपाल ने फॉलो अप किया वो फाइटर को, उसकी तरफ ध्यान देख रहा था कि क्या हो गया उसको थोड़ा चक्कर आ रहा था. इमीडिएटली हमारा वो रिंग साइड डॉक्टर ने क्लियर किया उसको, और वो रिंग साइड डॉक्टर एक्सपीरियंस डॉक्टर था. उसने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम ठीक है. उसने पोस्ट फाइट मेडिकल रिपोर्ट साइन किया है. लेकिन हमारा कमिश्नर ने जानबूझ के उसको हॉस्पिटल भेजा और एमआरआई कराया.
और जब वो MRI कराया तो कुछ आया समझ में, उसकी वजह से he was there for 2 extra days in the hospital and then released. Why? It is called post fight care. There is a human element when we organize MMA events in India. We understand these are human beings. ये किसी का बच्चा है, किसी का लड़का है ये. So we ensure that there is post fight care for our athletes, and we ensure that there is extra care done for them. We observe them. That is what our officials do. हमारे officials experienced है ऐसे काम में. ऐसे इवेंट्स में ये सब हो रहा है? नहीं हो रहा है. आजकल ये इवेंट जो इंडिया में हो रहा है ना, क्या हो रहा है? सब लोग UFC देखता है तो उसको जोश आ जाता है, रोंगटे खड़ा हो जाता है उनका ये सब देख करके. तो क्या बोलता है, उसको क्या लगता है MMA क्या है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई एम ऑल्सो रेडी, लेट्स गो. अरे बकवास है ये. आर यू रेडी? आर यू रेडी? बकवास है ये सब चीज. अरे आता नहीं है तुम्हारे को रेफरिंग करना, आता नहीं है तुमको ऑर्गेनाइज करना, क्यों कर रहे हो तुम? क्रिकेट ऑर्गेनाइज करो. मेरा फेवरेट वर्ड, गिल्ली डंडा ऑर्गेनाइज करो, लेकिन मिक्स मार्शल आर्ट्स ऑर्गेनाइज मत करो. तुमको आता नहीं है तो मत करो, तुम्हारा बस की बात नहीं है तो मत करो, मर जाएंगे कोई तुम्हारे हाथ पे. And so that's what we want to do. We want that our events in India are safe. Point number 8, the reason that you can have serious injuries or death in Indian MMA, the absence of medical suspensions. Suspensions, क्या है suspension? आपको पता नहीं है ना मेडिकल सस्पेंशन क्या है? अगर एक फाइटर नॉकआउट होता है, based on the severity of the knockout, he gets a medical suspension from the sanction committee कि आप 1 month के लिए फाइट नहीं कर सकते हो, 2 month के लिए फाइट नहीं कर सकते हो, 3 months के लिए फाइट नहीं कर सकते हो, 6 महीने के लिए फाइट नहीं कर सकते हो. It's called a medical suspension. Why do we give a medical suspension? To give the fighter enough of time medically to recover. अगर मेडिकल सस्पेंशन नहीं है और वो सीरियस नॉकआउट हुआ है, नेक्स्ट इवेंट में फाइट करेगा, हमको पता नहीं चलेगा कि वो रेडी है कि नहीं, मर सकता है. मेडिकल सस्पेंशंस इज ओनली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईमा. पॉइंट नंबर 9, अरे 9 पॉइंट है. पॉइंट नंबर 9, निग्लेक्ट और लैक ऑफ सुपरविजन ड्यूरिंग वेट कट्स. जब उसका वेट कट जब हुआ ना, तो उसको सुपरवाइज कोई नहीं कर रहा था, और क्योंकि उनको सुपरवाइज नहीं किया गया, वो वेट और एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन के वजह से वो फाइटर का डेथ हुआ. तो हम क्या करते हैं, आईमा ऑफिशियल्स क्या करते? पूछो हमारे आईमा ऑफिशियल्स को. हम फाइटर्स का पीछा करता है 3 दिन के लिए. हमारा फाइटर्स जो है ना, MFN फाइटर्स, वो कंप्लेन करता है कि अरे ये आईमा ऑफिशियल्स छोड़ ही नहीं रहा हमारे को, रूम में आकर के इंटरव्यू करता है, ऐसे वो बातें करता है. मालूम है हम क्यों करता है? क्योंकि हम सुपरवाइज कर रहा है फाइटर को. ये कुछ उसका कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि वो बेहोश होने वाला है, ऐसा लगता है कि वो डिहाइड्रेशन होने वाला है, हम उनको इंटरव्यू करते हैं. अच्छा तुम्हारा कैसा वेट कट चल रहा है, खाना खाया क्या बराबर, क्या खाया तुमने? हम नोट बनाते हैं, हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, और हर इवेंट के बाद हमारा टीम एक पूरा डिटेल्ड रिपोर्ट बनाता है कि हमने उनसे क्या क्या इंटरव्यू लिया. हम उनको काउंसलिंग करता है. क्या आपको मालूम है? आपको पता नहीं है, आईमा ऑफिशियल्स हर MMA इवेंट में फाइटर को काउंसलिंग देता है. बेटा तूने ड्रग खाया क्या? हाँ, तूने कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस लिया है क्या? अरे ऐसा चीज मत करो, तुम्हारे लिए खतरा है ये. वी डू काउंसलिंग. 1 महीने पहले तुमने क्या बूस्टर क्या लिया, तुमने कौन सा पाउडर लिया, कौन सा सप्लीमेंट लिया, हम ये सब सवाल पूछते हैं, ये सब डिटेल्स हम लेता है. दिस ओनली हैपेंस इन आईमा. और आप लोग कर रहे हैं आर यू रेडी, आर यू रेडी, आई एम रेडी, एवरीबॉडी रेडी, चलो लेट अस रेडी एंड फाइट. अरे क्या यार, ये बच्चे का खेल नहीं है, ये किसी का जान खतरा में हो सकता है. So these are the 9 points which I hope you have noted, which are the risk element of mixed martial arts in India, and through a IMA sanction we reduce the risk element
and make the sport, make the mixed martial arts event closer to being safe. These health and safety policies are enforced by AIMA. कि MMA कोई बच्चे का खेल नहीं है, MMA में डेथ हो सकता है, हमारे एथलीट्स का जान खतरा में है जब आइमा सुपरविजन और आइमा सैंक्शन नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि हम रिस्क एलिमेंट को कम करें और आप अपना इवेंट को या तो आइमा सुपरवाइज करो या आइमा सैंक्शन करो। प्लीज